It was 3 a.m. Engine room temperature is at almost 45 degrees, and suddenly my purifier tripped. No warning, no second chance, and in that moment, I wasn't just an engineer. I was the fourth engineer responsible for it. बताया कि प्यूरीफायर और कंप्रेसर ये सब फोर्थ इंजीनियर की ड्यूटीज में आता है. People think fourth engineer is just a junior rank, but the reality, this position carries some of the most critical daily machinery responsibilities on board. And in this video, I'll show you what a fourth engineer actually does at sea, the real duties, the pressure, and the responsibilities. Because when the machinery fails at sea, there's no one going to help you. It's you. So let's break down the real duties of a fourth engineer. Hi guys, welcome back to my YouTube channel CF and welcome back to another episode of Life at Sea with Pankaj Sharma. So today I'm going to show you the duties of fourth engineer on board chemical tanker और oil tanker. और चार साहब हम लोग को दिखाने वाला है कौन कौन सा ड्यूटी एक फोर्थ इंजीनियर करता है ऑन बोर्ड केमिकल टैंकर. और ये एक 18 साल पुराना शिप है, दैट टू इट्स अ चाइनीज़ बिल्ड शिप. तो सोचो इस शिप का कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, बंकर सिस्टम कैसे होगा, लूब ऑयल का जितना भी इन्वेंट्री होता है, हाउ इज़ गोइंग टू मैनेज इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्यूरीफायर एंड कंप्रेसर एज वेल. तो ये सब चीज़ें चार साहब दिखाने वाला है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द प्यूरीफायर रूम. This is our fuel oil purifier which is in operation right now, and this is the purifier which is in standby. So for this purifier, before starting, what all we have to check? So before starting, now as this is running, I won't remove the dipstick. लेकिन ये dipstick निकाल के इसमें से इसका सम्प लेवल चेक करना रहता है, whether sufficient oil is there or not. उसके बाद ये रहा ऑपरेटिंग वाटर के वॉल. सो वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस इज ओपन. ये ओपन कंडीशन में होना चाहिए. एयर प्रेशर शुड बी चेक फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोलेनॉइड्स. वी हैव टू स्टार्ट द फीड पंप. फीड पंप शुड बी स्टार्ट एंड चेक वेदर द टेम्परेचर देयर. अभी सेपरेशन टेम्परेचर हर एक बंकर का अलग होता है. यूजुअली इट इज अबव 90 and 98, बिटवीन 90 and 98. सो आफ्टर द टेम्परेचर इज रीच वी कैन स्टार्ट द सेपरेटर. ये सेपरेटर स्टार्ट होने के बाद ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा. And separator will start. ये motor start हो जाएगा, and then we have to wait till the RPM is achieved. So for this purifier 11800 is the RPM which is required for starting. So ये start होने के बाद all we have to do is press the separation button. Okay. After the separation button, the system will ask whether the bowl was dismantled before or not, and according to the prompts we have to press the required buttons, and उसके बाद purifier will start. Okay, so this is the water block. This is the closing water solenoid valve. This is the displacement water, dislodge water solenoid valve, and this is the sealing water solenoid valve. According to the sequence, जो respective valves है अपने timing के हिसाब से open हो जाएंगे. Okay, so let's go to our next machinery. So this is our main air compressor number 1, number 2. One has to be on lead and one is on standby. आप जब भी राउंड में आओगे as a fourth engineer, all you will check is the parameters. All these parameters or all these gauges. This is the first stage, second stage, oil pressure and water pressure. All these needs to be checked. उसके बाद amps check करेंगे. ज़्यादा तो नहीं है, कम नहीं है. ये मेन एयर कंप्रेसर से एयर कंप्रेस होके जाएगी. Main air bottle. This is main air bottle number 1. This is main air bottle number 2. This is our emergency air compressor, and this is our emergency air compressor bottle.
This needs to be filled up so that in case of emergency, this can be used. इसमें oil level हमेशा check करना रहता है. This is the dipstick. तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में ऑयल लेवल होनी चाहिए और इससे और कम हो जाएगी तो देन वी हैव टू रिफिल द ऑयल. ओके सर, जैसा मैंने आपको बताया कि प्यूरीफायर और कंप्रेसर ये सब फोर्थ इंजीनियर की ड्यूटीज़ में आता है. इसके अलावा एक और ड्यूटी है जो है लूब ऑयल इन्वेंट्री लेना, वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा है लूब ऑयल लॉकर. जो जहाज़ पे जो लूब ऑयल लगते हैं डिफरेंट टाइप्स, जो ये सब लूब ऑयल्स में रहते हैं और एंड ये सब जो बड़े अलग ग्रेड्स रहते हैं, बिग ग्रेड्स, ये ड्रम में भी रहता है. सो दिस एंड दिस, ये दोनों मिला के कि इन्वेंट्री जो रहती है ये एज अ फोर्थ इंजीनियर आपको मेंटेन करनी रहती है. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू सेंड टू द कंपनी दैट हाउ मच लूब ऑयल हैव यू कंज्यूम्ड, एंड उसका लॉग रहता है बेसिकली कि कितना लूब ऑयल है, अपने ROB कितना है, अगले फ्यूचर 2-3 मंथ्स में हमें कितना लग सकता है लूब ऑयल. वो देन वी हैव टू इन्फॉर्म इट टू चीफ इंजीनियर कि इतना ROB है हमारे पास और ये मशीनरी को इतना कंजम्पशन रहता है. एंड अकॉर्डिंगली द कंपनी प्रोवाइड्स अस विद द रिक्वायर्ड लूब ऑयल. सो इसका ROB मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. एंड अलॉन्ग विद दिस इसका MSDS यहाँ होना चाहिए. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. ये बहुत क्रिटिकल रिमार्क है ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस. तो इसका MSDS, रबर ग्लव्स एंड ये जो मेंशन किया हुआ है सेफ्टी गॉगल्स एंड एवरीथिंग, ये सब यहाँ पे होना चाहिए. देन अपार्ट फ्रॉम लूब ऑयल हम लोग अभी जाएंगे बंकर टैंक्स देखने. एंड बंकर टैंक्स देखने के बाद विल गो टू सैंपल लॉकर जो कि मिडशिप में है. विल कंक्लूड द वीडियो अबाउट फोर्थ इंजीनियर ड्यूटीज. जब भी डेक पे जा रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर वी आर वेयरिंग प्रॉपर हेलमेट. ये चिन स्ट्रैप होना चाहिए और ग्लव्स है तो ग्लव्स भी लेके जाए. सो गाइज, एज अ फोर्थ इंजीनियर बंकर टैंक्स का साउंडिंग वॉल्यूम जो भी है वो आपको रिपोर्ट करना. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ फोर्थ इंजीनियर. सो हमारे जहाज़ पे देयर आर 4 बंकर टैंक्स एज यू कैन सी. 1 port, 2 port. Okay. And on the other side, starboard side में 1 starboard and 2 starboard respectively. Okay. So on our ship 2 bunker tanks are for diesel and 2 bunker tanks are for VLSFO. So दोनों की साउंडिंग जब चीफ इंजीनियर बोलता है when the sea is calm तो आपको एक्यूरेट साउंडिंग आ जाएगी. So उसका साउंडिंग लेके साउंडिंग बुक में चेक करके अकॉर्डिंग टू द ट्रिम वॉल्यूम कैलकुलेट करके यू हैव टू मेंटेन कि जहाज पे हमारे पास कितना ऑयल है. बंकरिंग के टाइम पे भी यहीं से तुम लेते हो ना? यस, ये साउंडिंग पाइप रहेंगे तो साउंडिंग लेंगे. और बंकर टैंक के पाइप्स किधर है? हमारे जहाज पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. 2 VLSFO टैंक्स आर कन्वर्टेड टू DO टैंक्स. सो दिस इज़ द DO लाइन विच विल गो फॉरवर्ड, जो आपको मैनिफोल्ड में दिखाएंगे. एंड दिस इज़ द VLSFO लाइन. सो यहाँ से जाएगा आपके DO लाइन में जाएगा यहाँ से. एंड VLSFO bunker will go through this line and to the tanks in the respective tanks. And as a fourth engineer मैं आपको बताता हूँ कि the most beautiful part of taking bunker soundings, जिसके आपको एक बहाना मिल जाता है डेली आके बाहर का समुंदर देखने का. So यहाँ आके आप लोग 10-15 मिनट समुंदर का मज़ा ले सकते हो. आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा बिकॉज बाकियों के लिए तो आप साउंडिंग ले रहे हो, अलेज ले रहे हो, लेकिन आप यहाँ आके समुंदर का मज़ा ले सकते हो, खुली हवा सांस ले सकते हो. यहाँ से ऊपर से चल रहे हैं. वीडियो अच्छा लगे दिख जाता था ऊपर. सो गाइस, ये अपना है बंकर मैनिफोल्ड. वी आर ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द बंकर मैनिफोल्ड. ऐसा ही मैनिफोल्ड पोर्ट साइड में भी रहेगा. सो दिस इज़ आवर डीजल लाइन. यहाँ पे जो बंकर बार्ज आता है उसका यहाँ पे कनेक्शन जो होज रहता है स्टैंडर्ड फैंस कनेक्शन वो यहाँ पे कनेक्ट होता है. एंड इसके बाद ये है डीजल ऑयल का. एंड सिमिलरली वी हैव वन फॉर फ्यूल ऑयल फॉर VLSFO. सो ये दोनों ऑन ईच साइड रहेगा, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड. सो जिस साइड भी आपकी बंकर बाज आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपका कनेक्शन हो जाएगा. एंड ये आपका मैनिफोल्ड वॉल रहेगा which should be in close connection before you start any operation, and then after hose connection you have to ensure ये valve खुला होना चाहिए. उसके बाद
you can start the bunkering operation. पहली बार जब आया तो ढूंढ रहा था लॉकर का है चाइनीज सब उल्टा है। ये है अपना सैंपल लॉकर। यहाँ पे बंकर सैंपल्स और कार्गो सैंपल्स यहाँ दोनों रखे जाते हैं। ये है अपने बंकर सैंपल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो बंकर सैंपल्स। दीज आर द कार्गो सैंपल्स। ओके एज फार एज अ फोर्थ इंजन इज कंसर्न्ड, ये सब आपका एरिया है बंकर सैंपल्स। ओके और these bunker samples are to be maintained up to 1 year from the date of delivery या फिर till the cargo is substantially consumed. ओके So जैसा कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट बंकरिंग हमारा ये हुआ था, उसके हिसाब से लेटेस्ट अरेंज करके रखा है। ये हमारा लेटेस्ट बंकरिंग है, ये सब प्रीवियस बंकर है अप टू 1 year के बाद सारा डिस्पोज कर देना है। यस। देन यहाँ पे उसके बाद ये रहता है फाइल में MSDS, जो यहाँ पे बंकर रखा है उसका MSDS हमें रखना रहता है। हाल ही में हमारा VLSFO एंड LSMG दोनों बंकर हुआ था। सो इसमें हम लोग अब MSDS का शीट ऐड करेंगे। ये हो गया LSMGO का एंड ये हो गया VLSFO का। परफेक्ट ये दोनों MSDS हम लोग ऐड करेंगे। वी कीप इट इन द सैंपल लॉकर। ओके So as a fourth engineer, it's your responsibility to ensure that the MSDS is kept in the sample locker and all the samples are arranged properly. ओके Okay, that's it. थैंक यू सो मच।